Hi, you guys. My name is Manish Anand, and you are watching Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. Now, before we start today's show, I'm reminding you to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. And on that note, these are our top stories. Sara Ali Khan gets annoyed with the paparazzi. Sabah Azad breaks silence on constant scrutiny on her relationship with Hrithik Roshan. Did Alia Bhatt walk out of Nitesh Tiwari's Ramayan co-starring Ranbir Kapoor? Tamanna Bhatia Vijay Varma blush as they pose for the Paps. सारा अली खान को आया पैप्स पे गुस्सा. आखिर क्यों हुई सारा मीडिया से नाराज? Sara Ali Khan Bollywood के rising stars में से एक है. The actor has been choosing challenging subjects and characters to showcase her acting potential. वैसे तो वो पैप्स के साथ काफी cordial रहती है, but it looks like इस बार वो constant media attention से परेशान हो गई. Take a look. सारा अली खान हमेशा पैप्स के साथ हंसी खुशी इंटरैक्ट करती हैं and even does her trademark नमस्ते gesture on their request. अक्सर उन्हें पैप्स के साथ बातचीत करते हुए भी देखा जाता है, लेकिन इस बार सारा हुई पैप से नाराज. सारा को मुंबई के एक मल्टीप्लेक्स में देखा गया जहां वो अपने दोस्त के साथ वक्त बिताने आई थी. The actor got irritated when the Paps kept hounding her for pictures even after she had posed for the photos. Paps उन्हें अकेला नहीं छोड़ रहे थे and finally Sara lost her cool and said, "Sir, please अभी बंद करो ना. Honestly, मुझे अच्छा नहीं लगता." Thank you. सारा को अपसेट देखकर फैंस ने भी उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि सारा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है. सारा's latest release जरा हटके जरा बचके लोगों को काफी पसंद आई and the young star has multiple films in the pipeline जो अगले stages पे हैं. सारा जहां एक बड़ी स्टार है, वहीं ऑफ स्क्रीन वो बहुत सिंपल लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं and is seen dressing in casual clothes and spending time with her family and close friends. सारा जी, we hope कि आपने अपने शाम को एंजॉय किया and we do hope कि आगे आपको ऐसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े. क्या बात है, जोड़ी हिट है. ये जोड़ी ने आग लगा दिया. बी टाउन के लेटेस्ट कपल तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा ने किया रेड कार्पेट पे जॉइंट अपीयरेंस. प्यार में डूबे ये दो सितारे लग रहे थे एक साथ काफी अडोरेबल. भाई जोड़ी को नजर न लगे. तमन्ना को जब भाभी बुलाया पैप्स ने, वो बड़े प्यार से शर्माई. तमन्ना भाटिया एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर है जो सदर्न फिल्म इंडस्ट्रीज में अपना स्टारडम एस्टैब्लिश करके अब बॉलीवुड में बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स कर रही है. The actor has been a part of multiple OTT shows this year and it looks like उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी Bollywood has been lucky. तभी तो यहाँ आके उन्हें विजय मिले. Take a look. तमन्ना भाटिया and विजय वर्मा fell in love while shooting for a web series together और कुछ महीनों पहले तमन्ना ने एक इंटरव्यू में एडमिट किया कि विजय उनके लिए बहुत खास है. Then this happened. So disappointed. Okay. Then I'm like, I've never kissed on screen before, so you're going to be the lucky guy. So he was like, मैंने बहुत बार किया. उन्होंने रिवील किया कि विजय बिना किसी प्रीटेंस के उनकी जिंदगी में आए और दोनों के बीच बिना किसी इनसिक्योरिटी या डाउट्स के प्यार बढ़ता गया. I was like, damn good actor. And then Joy was like, yeah, his mom just wants him to get married. And I'm like, what? Okay. But like, why am I getting this information? But that's how I was introduced to Vijay actually. तमन्ना अपने नए OTT शो के स्क्रीनिंग पर विजय के साथ रेड कार्पेट पे नजर आई. भाई जोड़ी को नजर न लगे. इसी इवेंट पे सुनील ग्रोवर, कबीर खान, श्वेता तिवारी, गौहर खान, आकांक्षा पुरी, अभिषेक बैनर्जी और उर्फी जावेद जैसे कई सेलिब्रिटीज मौजूद थे. तमन्ना और विजय ने इवेंट के लिए जॉइंट एंट्री की और पैप्स के लिए पोज किया.
while the stunning diva wore a white shirt, blue pants and a quirky corset for the event. विजय ने चूज किया एक कैजुअल लुक और पहना एक स्वेटशर्ट एंड ब्लैक जीन्स। दोनों एक साथ बहुत खुश लग रहे थे as they posed for the paps and exchanged some banter with them. क्या बात है, जोड़ी हिट है। ये जोड़ी ने आग लगा दिया। जब किसी ने तमन्ना को तमन्ना भाभी कह के बुलाया तो वो अपने आप को शर्माने से रोक नहीं पाई। वाकई दोनों की जोड़ी बहुत खास है और हम होप कर रहे हैं कि तमन्ना जल्द ही तमन्ना भाभी बन जाए। सबा आजाद ने कहा कि उनके पर्सनल लाइफ पे हो रही कांस्टेंट स्क्रूटनी उन्हें बॉदर करती है, लेकिन उन्होंने इसके साथ जीना सीख लिया है। सबा आजाद और ऋतिक रोशन ने करण जौहर के 50th बर्थडे पार्टी पर एक साथ एंट्री लेके अपनी रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर दिया था। The two had been spotted together before that on multiple occasions, leading to speculations कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सबा और ऋतिक अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन पब्लिक फिगर्स होने के नाते उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चे में रहती है। टेक अ लुक। सबा आजाद और ऋतिक रोशन की जोड़ी बहुत ही प्यारी है। सबा एक सिंगर और एक्टर हैं और ऋतिक एक बी टाउन सुपरस्टार। दोनों अक्सर एक साथ वक्त बिताते हुए नजर आते हैं एंड वी लव सीइंग देयर क्यूट पिक्चर्स टुगेदर। सबा को रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी लव लाइफ पे हो रही कांस्टेंट स्क्रूटनी और स्पेकुलेशन उन्हें परेशान करती है, तो सबा ने कहा that the constant speculation does get to her and everybody else who goes through it. लेकिन वो ये बात भी समझती हैं कि पब्लिक फिगर को ये स्क्रूटनी झेलनी पड़ती है। The actor said कि लोग दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ये जानने के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हैं और इसका कुछ नहीं किया जा सकता। She believes that the only solution is staying focused on work and not letting the constant media attention affect you. सबा ने कहा कि स्माइल करके कैरी ऑन करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो सिर्फ अपने काम के बारे में पब्लिकली डिस्कस करना चाहती हैं क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ किसी और की नहीं, सिर्फ उनकी अपनी है। सबा और ऋतिक रिसेंटली अर्जेंटीना गए थे जहां उन्होंने एक साथ हॉलिडे किया। The two had shared many romantic pictures from their vacation, जहां उन्होंने लोकल कैफेज में खाना एंजॉय किया और टूरिस्ट की तरह एक नए कंट्री के साइट्स और साउंड्स एक्सपीरियंस किए। हमें आपकी जोड़ी बहुत पसंद है सबा और हमें आपका टैलेंट उससे भी ज्यादा पसंद है। We can't wait to see you on screen again and wow us with your skills as an actor. रणबीर बनेंगे श्री राम लेकिन आलिया भट्ट नहीं बनेंगी देवी सीता। कन्नड़ा सुपरस्टार यश ने दिए रावण के लुक टेस्ट नितेश तिवारी के मैग्नम ओपस रामायण के लिए। रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट फर्स्ट वर्क टुगेदर इन ब्रह्मास्त्र, जिसके शूटिंग के दौरान दोनों की लव स्टोरी भी शुरू हुई। There have been speculations for a long time now that Alia and Ranbir would be seen opposite each other in Nitesh Tiwari's magnum opus Ramayan. लेकिन शायद खबरें ये पूरी तरह सच नहीं है। Take a look. नितेश तिवारी और मधु मंतेना इंडियन एपिक रामायण पर फिल्म बना रहे हैं जो काफी समय से अंडर प्रोडक्शन है। फिल्म से जुड़ी खबरें और रूमर्स कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होती रहती हैं एंड वन सच रूमर वाज रणबीर एंड आलिया वर्किंग टुगेदर अगेन आफ्टर ब्रह्मास्त्र इन दिस मूवी।
लेकिन एक इनसाइडर सोर्स ने अब फिल्म के लीड एक्टर से जुड़ी अपडेट्स शेयर की हैं। द सोर्स रिवील्ड देयर वर स्पेकुलेशंस अबाउट रणबीर कपूर, व्हिच इज ट्रू, बट आलिया भट्ट वाज नेवर अप्रोच्ड फॉर एनी रोल इन रामायण। In fact, the film has not yet reached the stage where they offer Sita's role to anyone. Nobody has been approached yet. सोर्स ने बताया कि फिलहाल मेकर्स सिर्फ रावण के कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने कन्नड़ा सुपरस्टार यश को अप्रोच किया है। They are just working on Ravana, and for that, Yash had undergone multiple look tests recently. The finalization of Yash is yet to be decided, the source added. नितेश तिवारी और मधु मंतेना इस फिल्म को एक विजुअल और नैरेटिव स्पेक्टिकल बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो कोई कमी नहीं रखना चाहते। हम भी देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आदि पुरुष के बाद रामायण का ये इंटरप्रिटेशन कैसा होगा। And it's now time to take a look at our special story for the day. ये कौन है ये पूजा और ये क्या चल रहा है? आयुष्मान खुराना ने तोड़ी चुप्पी नुसरत भरूचा के सीक्वल में ना कास्ट होने के कमेंट्स पर। क्या पूजा पर लगा रखा है? पूजा बत्रा, पूजा बेदी, कौन सी पूजा बताओ? आखिर क्यों नुसरत भरूचा को अनन्या पांडे ने रिप्लेस किया? यार पहली बार अपने को देखा, मुझे खुद से ही प्यार पहली बार हुआ। आयुष्मान खुराना और अनन्या पांडे की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। एडवांस बुकिंग्स ओपन हो गए हैं और सबकी नजरें आयुष्मान और उनकी फीमेल अवतार पूजा के जलवों पे है। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। मुझे बताओ कितने बड़े खिलाड़ी हो तुम? ड्रीम गर्ल के पार्ट 1 में आयुष्मान के ऑपोजिट नुसरत भरूचा थी, लेकिन फिल्म के सीक्वल में अनन्या पांडे हैज बीन कास्ट ऑपोजिट द एक्टर। नुसरत ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा था कि वो फिल्म के सीक्वल में कास्ट ना होने की वजह से डिसअपॉइंटेड थी। नुसरत ने कहा, I was a part of Dream Girl 1 and I loved that whole team. I terribly miss working with them, but why they didn't cast me in Dream Girl 2, I think only they can answer. I don't know. There is no logic and there is no answer to it. I am a human being, so of course it hurts. And of course it feels unfair. But I get it. It is their decision. Cool, no problem. जब आयुष्मान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, This is an organic sequel to Dream Girl. We had to cast a different film and Ananya fit the bill. I think she is very spunky and adds value to the film. Complimenting his leading lady, Ayushmann said, the way she has taken the accent in the film, the Mathura accent, is very commendable. It was fun working with her and I would love to work with her in the future as well. जब उनसे अपने और अनन्या के बीच के एज गैप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा, मेरे से बड़े बड़े एक्टर्स का एज डिफरेंस और भी ज्यादा है। Well, here's hoping कि Dream Girl 2 आपके ड्रीम से भी बेटर परफॉर्म करें and you have a great success at the box office.
और अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या है सबसे ट्रेंड हो रही खबरें? वी ब्रिंग यू ऑल द न्यूज दैट इज क्रिएटिंग अ बज़। टेक अ लुक। सोर्सेस का कहना है कि पति, पत्नी और वो विद स्टार्ड कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर एंड अनन्या पांडे विल बी गेटिंग अ सीक्वल। लेकिन अनन्या इस सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगे और इस बार द न्यू वो विल बी प्लेड बाय अनदर एक्टर। शाहरुख खान की फिल्म जवान के अमेरिका में ऑलरेडी 9,700 टिकट्स बिक चुके हैं। जवान will be screened across 367 locations in the US and have 1,600 shows on day one of its release. The total revenue from ticket sales in the US has already crossed 1 crore rupees. वेटरन एक्टर जीनत अमान ने अपने बेटे जहान के साथ फोटो शेयर करते हुए शेयर की कुछ स्पेशल एडवाइस। जीनत जी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्लीज डोंट बी अफ्रेड टू होल्ड योर मदर, सिस्टर, वाइफ, आंट, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स हैंडबैग व्हेन दे आस्क, और फॉर दैट मैटर इवन व्हेन दे डोंट आस्क, बट यू कैन सी दैट दे आर स्ट्रगलिंग और हैव बीन कैरिंग इट फॉर टू लॉन्ग। आई कैन गारंटी दैट यू विल नीड समथिंग फ्रॉम इट someday if not every day. Nothing screams insecure like a man who's afraid of or disgusted by things associated with women. Tampons, handbags, makeup, whatever it is. Get over it. दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन फाइटर के लिए जल्द ही एक ग्रैंड डांस नंबर शूट करेंगे, जिसे बॉस्को एंड सीजर कोरियोग्राफ करेंगे। गाने को रिपोर्टेडली विशाल डडलानी गाएंगे एंड इट विल बी अ चार्ट बस्टर नंबर लाइक द सॉन्ग्स इन वॉर एंड पठान। अंगद बेदी ने कहा है कि उनका कैरेक्टर टाइगर 3 का हिस्सा नहीं है। Issuing a clarification on his presence in the film, Angad said, "No, I'm not a part of Tiger 3. The character doesn't continue in Tiger 3, but hopefully the franchise will move forward and it is moving forward beautifully. There are so many announcements that have happened, whether it is Tiger vs Pathan or War 2. There will also be spin-offs on Pathan. So I just feel that hopefully Namit Khanna, the character, will come back." और उसी के साथ we come to the end of this episode of Planet Bollywood, promising to be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, don't forget to stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities on the go. And on that note, this is me, Manish, signing out, saying ciao.